So when Louis XVI rejected the demand of the members of the third estate, what was the demand? The demand was that the members of third estate, they demanded that each member would have one vote. When this demand of Louis XVI was rejected, the members, 600 members of third estate, they boycotted. They walked out from the assembly and they met on the ground of an indoor tennis court hall at Versailles on 20th of June. 20th of June. When not only these members, a large number of the peoples, common peoples of the third estate, they collected there and they decided to draft a constitution for France. And National Assembly was formed there. And when National Assembly was formed, the members, these members, educated members, manufacturers, producers, merchants, teachers, lawyers, they decided to draft a constitution for France. In that, they called the people that they should not disperse, they should not get divided, they should be collectively. And when they said that when we are busy in drafting the constitution, you should continue your struggle. During this time, when the members of National Assembly, they were busy in drafting of the constitution, the other peoples who were angry, especially in Paris, the Paris peoples, they were suffering from hungerness. They were struggling for survival. So because women have to stand long hours in a queue in the front of the bakeries for the bread. Women, they have to stand a long hours in a long queue for bread. So angry women, they stormed and they attacked Bastille, because Bastille was the place for the hated for the peoples. So this was the explanation, my dear students, still here. Here one more thing is that one of the person, Sieyès, Abbé Sieyès, he was from royal family. He was not from third estate. He was belonging from first estate. But he was also the supporter of liberty, justice and fraternity. He was the supporter of the common peoples. That's why when peoples collected in the ground hall of the indoor tennis court on 20th of June, he delivered a powerful speech there. Not only that, he had expressed his ideas in the pamphlets. Pamphlets, you know, students, daily in newspapers, so many papers are coming of various advertisements. They are known as pamphlets. So, not only he delivered a powerful speech for the peoples, common peoples, he had expressed his ideas of justice, equality, fraternity in pamphlets. So this was the explanation here regarding the topic outbreak of the revolt in France. Now students, for your convenience, to make the topic more clear to you, there should be no confusion between topic and you. We are trying our best to solve all your problems. That's why for your benefit, I am translating the same matter in Hindi. Only for your benefit. Already I have translated this matter in English. Now I will translate this entire explanation under the topic outbreak of the revolt in Hindi. Okay, listen carefully. See, you know that previous that इसके पहले हमने फ्रांस सोसाइटी के सेटअप के बारे में डिस्कस किया. उसमें हमने ये देखा कि फ्रांस सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी. 3 स्टेट्स बोले तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट.
फर्स्ट स्टेज क्लेरेजी, सेकंड नोबिलिटी और थर्ड कॉमन पीपल्स का था। और फर्स्ट और सेकंड स्टेज ये दोनों ही फ्री थे किसी भी प्रकार के टैक्सेस से, इनको कोई बर्डन नहीं था टैक्सेस का, ये फ्री थे टैक्सेस से। टैक्सेस का बर्डन सिर्फ थर्ड स्टेज पीपल्स पे था, कॉमन पीपल्स पे। अब लुईस 16 जिस समय रूलर बने, लुईस 16 जिस समय रूलर बने, उस समय फ्रांस की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। क्यों खराब थी ये भी मैं बता देता हूँ, पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशंस इसलिए खराब थी कि इकोनॉमिक सोर्सेज तो सारे ड्रेन आउट हो गए थे, ड्रेन आउट हो गए थे। इकोनॉमिक क्राइसिस थी फ्रांस में। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने यूएसए को इंडिपेंडेंट होने के लिए मदद की। यूएसए की 13 कॉलोनीज जो कॉमन एनिमी थे, उस समय कॉमन जो एनिमी थे वो ब्रिटेन था। ब्रिटेन वॉज कॉमन एनिमी, सो ब्रिटेन कॉमन एनिमी था, तो ब्रिटेन का होल्ड था यूएसए पे। तो फ्रांस ने 13 वॉर्स में यूएसए की मदद की इंडिपेंडेंट होने के लिए, और अल्टीमेटली अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया था। इसके कारण बहुत सारी फाइनेंशियल सोर्सेज ड्रेन आउट हो गई थी। अब डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए फाइनेंस की जरूरत थी। इसलिए लुईस 16 ने यह प्लान किया कि वो न्यू टैक्सेस पीपल्स पे इंपोज कर देगा। ये न्यू टैक्सेस इंपोज करने से इकोनॉमिक क्राइसिस से थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा और डे टू डे एक्सपेंसेस मीट आउट किया जा सकता है। लेकिन जो ओल्ड सिस्टम था फ्रांस का, उस ओल्ड सिस्टम के अनुसार लुईस 16 या रूलर को राइट नहीं था कि वो किसी भी प्रकार का नया टैक्सेस बिना कंसल्ट के अपनी मर्जी से लगा सकता है। लुईस 16 या रूलर मोनार्क ओल्ड सिस्टम के अनुसार फ्रांस में मोनार्क के पास ये पावर नहीं था कि वो बिना कंसल्ट के किसी भी प्रकार के नए टैक्सेस को इंपोज कर सकता है। इसलिए 5 मई 1789 में लुईस 16 ने जनरल स्टेट असेंबली की मीटिंग कॉल की। ऑन 5 मई 1789 लुईस 16 called the meeting of general state। इस मीटिंग में 300 रिप्रेजेंटेटिव तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के थे और 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट के थे। ये जो लुईस 16 ने मीटिंग कॉल की नए टैक्सेस को इंपोज करने के लिए 5 मई 1789 में, इसमें 300 मेंबर्स तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे और 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट के थे। ये जो फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर्स थे, ये एक स्ट्रेट रो में बैठे हुए थे आमने सामने, लाइक दैट दे वर सिटिंग लाइक दैट, स्ट्रेट रो फेसिंग टू ईच अदर। ये 300 मेंबर्स फर्स्ट और सेकंड स्टेट के एक स्ट्रेट रो में बैठे हुए थे, एक दूसरे को फेस करते हुए। लेकिन ये जो 600 मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, इनको बैठने का राइट नहीं दे रखा था, ये लोग पीछे खड़े थे। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो मेंबर्स बैठे हुए थे, उनके पीछे ये 600 मेंबर्स जो थे थर्ड स्टेट के स्टैंड एट बैक। नाउ पेशेंट्स थे, आर्टिशंस थे, दूसरे पीपल्स थे, they were denied, they were not allowed to attend the meeting of the general state। but the 600 members थे थर्ड स्टेट के, ये 40,000 पीपल्स के, कॉमन पीपल्स के ग्रीवेंजेस, डिमांड्स के 40,000 लेटर्स अपने साथ लेके आए थे। क्योंकि ये जो 600 मेंबर्स थे कॉमन थर्ड स्टेट के, ये पूरे फ्रांस नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये खाली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे जनरल असेंबली मीटिंग के अंदर, ये लोग पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए ये पीपल्स के ग्रीवेंजेस थे, पीपल्स की डिमांड्स थी, उसके 40,000 लेटर्स वो अपने साथ लेके आए थे रूलर को दिखाने के लिए। बट अब जो वोटिंग था, क्योंकि कोई भी नए टैक्सेस को
करना है तो वो प्रपोजल पास होना चाहिए और वो प्रपोजल वोटिंग के द्वारा ही पास होता। लेकिन जो वोटिंग सिस्टम था वो लुई 16 ने ओल्ड पैटर्न एडॉप्ट किया। ओल्ड पैटर्न का क्या था कि एक स्टेट की एक वोट माना जाएगा, एक स्टेट का एक वोट माना जाएगा। लेकिन ये अगर ये प्रिंसिपल पे वोटिंग हो जाती तो कॉमन पीपल लूजर रहते। क्यों रहते? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो दोनों एक थे, ये रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, तो इनकी तो वैल्यू 2 हो जाती और कॉमन स्टेट की वैल्यू 1 रहती। समझ रहे हैं? यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट तो कंबाइन थे तो इनकी वैल्यू तो 2 होती और इनके वोट की वैल्यू 1 होती। तो ये प्रपोजल जो है थर्ड स्टेट का इजीली, जो प्रपोजल था लुई 16 का नए टैक्सेस इंपोज करने का, वो इजीली पास आउट हो जाता। इसलिए मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट ने इसका अपोज किया। मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट ने इसका अपोज किया और उन्होंने क्या डिमांड रखी? उन्होंने ये डिमांड रखी that each member would have 1 vote. Each member would have 1 vote. हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कॉमन पीपल्स विनर रहते, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट की तो वैल्यू 300 ही होती और यहाँ 600 थी, तो ये मेजॉरिटी में थे, ये मेजॉरिटी में थे। तो यहाँ लुई 16 न्यू टैक्सेस इंपोज नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने डिमांड रखी that each member would have 1 vote. Louis 16 rejected this demand. He rejected this demand. Louis 16 ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। तो जब लुई 16 ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया तो ये जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट बॉयकॉट कर दिया असेंबली को, वॉकआउट हो गए असेंबली से बाहर निकल गए, असेंबली को छोड़ के बाहर चले गए, बॉयकॉट कर दिया असेंबली को, बिकॉज उनकी डिमांड को लुई 16 ने रिजेक्ट कर दिया था। उनकी कौन सी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था? उनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था कि ईच मेंबर शुड हैव 1 वोट। दिस डिमांड, ये जो डिमांड उनकी थी उस डिमांड को लुई 16 ने रिजेक्ट कर दिया। और जब इस डिमांड को लुई 16 ने रिजेक्ट कर दिया तो ये 600 मेंबर्स थे जो थर्ड स्टेट के, वो असेंबली को बॉयकॉट कर गए, वॉकआउट हो गए बाहर। और वो लोग 20th ऑफ द जून में इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल के अंदर वो कलेक्ट हो गए ऑन द ग्राउंड ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट ग्राउंड में वहां पे कलेक्ट हो गए। खाली 600 मेंबर्स कलेक्ट नहीं हुए थे, बहुत लार्ज नंबर ऑफ द कॉमन पीपल्स दे गैदर्ड देयर। लार्ज नंबर ऑफ द पीपल्स, कॉमन पीपल्स वहां पे जमा हुए और वहां पे उन्होंने ये डिसाइड किया और उन्होंने नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन कर दी। जिस समय उन्होंने नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन की, उधर पीपल्स को ये भी कॉल किया कि हमें अब अलग नहीं होना है, वी हैव टू बी collectively वी हैव टू स्ट्रगल इट। तो जिस समय ये मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के मेंबर्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में बिजी हो गए। उस समय ये मेंबर्स थे, एजुकेटेड क्लास पीपल्स थे, थर्ड स्टेट के कॉमन पीपल्स थे, वो बिजी हो गए फ्रांस के नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। उसी समय पेरिस के अंदर भूखमरी फैली हुई थी, हंगरनेस फैली हुई थी। वुमेन्स को बेकरीज के बाहर घंटों लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ता था ब्रेड के लिए। They had to stand in a long queue, long hours for bread. तो वो वुमेन्स में जो एंगरनेस था, उस एंगरनेस के कारण वुमेन्स एक साथ फ्लो हो गई और उन्होंने बेस्टाइल को फिर एक बार अटैक कर दिया। बेस्टाइल को क्यों अटैक किया गया? क्योंकि बेस्टाइल एक जगह, प्लेस थी जो पीपल्स लोग उसको हेट करते थे, बिकॉज इट वॉज द प्लेस ऑफ मोनार्च, पीपल यूज्ड टू हेट इट। लेकिन उसी टाइम में वन ऑफ द पर्सन था जिनका नाम था एबिसियास, ये रॉयल फैमिली से थे, ही वॉज फ्रॉम रॉयल फैमिली, फ्रॉम फर्स्ट स्टेट, बट ही वॉज द सपोर्टर। लेकिन वो कॉमन पीपल्स के सपोर्टर थे, वो इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी आइडिया के सपोर्टर थे। जिसे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्पीच डिलीवर की। स्ट्रॉन्ग स्पीच डिलीवर से पीपल्स इंस्पायर हुए, लोगों में और जोश आया स्ट्रगल करने का, हिम्मत आई स्ट्रगल करने की।
इतना ही नहीं, इन्होंने अपने आइडियाज को पैम्पलेट्स में पब्लिश किया। इन्होंने अपने आइडियाज को पैम्पलेट्स में पब्लिश किया। पैम्पलेट आप जानते हैं, अपने न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कई प्रकार के ऐड के पेपर्स आते रहते हैं, दैट इज नोन एज पैम्पलेट्स। So that's all, this much for this topic. Have a nice day, students. Thank you.